Hello everyone. So a warm welcome to all of you in the fifth session of the environment PYQs. And before we proceed, just confirm me that my screen is visible and my voice is audible to all. You're audible, but your screen is not visible. Am I audible to all? Yes. Okay, so let us start with today's session and we'll be taking the same 14 to 15 question. And now let us start with the very first question. So this is the first question of the day. The term M stripes is sometimes seen in the news. So it is in the context of. Anyone would like to solve this question? I think it's a tracking system for tigers, so it would be the maintenance of tiger reserves. Exactly. Okay. And the basic thing here, some of the aspirants after giving the exam, they said that I'm stripes. So stripes is the elimination hint for some of them. So if you are well versed with these tricks or elimination techniques, you can solve it. Okay. And those of you who are no, they are keen to solve the questions, please be quick. Okay. So that no, we just don't waste the seconds even. So just be quick in case you want to solve. Okay. So I guess explanation you can check later on by your own. Okay. So this question, red sanders. It is a part of the South India. Then it is a tropical rainforest. This is repeated question. We have discussed it earlier as well. So anyone? Only one, Only one. Okay. Why not two? because it's not found in tropical rainforest. It is found in deciduous forests. Deciduous forest. Perfect. Okay. So answer would be A. Option A is the correct answer. Okay, and resting no red sandals जो होता है that is a sandalwood and it is found in the eastern and no जो ईस्टर्न घाट रहता है आंध्र प्रदेश में काफी मिलता है ये. Okay, so बाकी second statement we have already discussed that this is the dried deciduous, so that is why it is come. Coming to question number 46, please solve. Portia, Priyanka, Victor. The answer What is is Andaman. sorry, what should be the answer as per you? A. Andaman Island. Andaman Nicobar, correct. Okay, so this is the question, and this was there in the news way back to 2015, and then it was there in the 2016 exam. Okay, so Andaman, and also जो इस type के question होते हैं in which there is no some of the properties of a plant or animal or like any of the species is given, and then they ask like what is the location. So just be well versed. Again, we have discussed these as well. Anyone would like to give a quick answer for this? Cry camel. Swimming up to 3 kilometers, grazing on mangrove, it is wild and cannot be domesticated. So let us eliminate three statement first. Okay. Once we eliminate option number 3, we are left with option A, and that is the answer. Okay. Question number 48. NGI पे ये question है. Please solve this question. All the three statements are right, according to me. Third statement is incorrect. Statement 3 is incorrect. If possible, Victor and Dreamer, please speak loud or please check your mic before speaking. Like your voice is so low, so much. Okay, please just check it. So statement 3 is wrong. Why so? Because one of the chief minister no, prime minister रहता है इसका, ठीक है? So prime minister and NGIBA जो है, so this is for the Ganga conservation and rest the statement is like no easy. Okay, and ये वाला जो question है, atmospheric gases are considered while calculating the air quality index. I guess answer C.
Answer C. Okay, anyone else? B answer, I think. B, ball. हाँ जी. Okay, anyone? ओके सो सी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था, ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था. मतलब ये जो इंडेक्स है ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैलकुलेट नहीं करता है. तो इन केस इफ यू नोट दिस फैक्ट, दो दिस इज नॉट अ सिंपल फैक्ट विच यू शुड रिमेंबर, बट या फॉर अपकमिंग प्लीज हैव अ लुक ओवर दिस फैक्ट. ठीक है, सो वंस यू एलिमिनेट ऑप्शन नंबर दिस, लाइक नो option 1, you are left with the option C, and C is the correct answer. Okay, so these are some of the tricks which you can just apply in the whole, that if this not, then which one. Okay, and then AQI जो level है, that is based upon the 8 gases. Okay, and 8 जो pollutants SO2 nitrates हो गए, ये सभी जो है PM, PM2, PM2.5. So just remember these. Okay, ब्यूगो जो होता है, ब्यूगो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का एक टैग लगा होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनीवन कैन टेल मी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो ये BEE है, ये कौन सी मिनिस्ट्री में आता है? बी इज अंडर द सुपरविजन ऑफ विच मिनिस्ट्री? इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, MOP, मिनिस्ट्री ऑफ पावर. ओके, तो और ये जो बनाया गया, ये इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के एक्ट से बना है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ है. तो अब सॉल्व करना चाहेगा कि किस किस पे ये वाला टैग होगा या लेबल होगा. All. D. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, anyone else if want to differ from the answer of dreamer? ये गलत है. ठीक है, ये आंसर इसका डी ही है. ये गलत दिया हुआ यहाँ पे. ठीक है, जस्ट करेक्ट. ओके, सो एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है, ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ है एनर्जी कंजर्वेशन. सो इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन ही एनर्जी कंजर्वेशन, दैट इज अ मिसस्पेल फ्रॉम माय साइड. ओके, एंड देन सी व्हाट दे हैव डन इज, लाइक यहाँ पे इन्होंने गलत आंसर दे दिया, ऑप्शन बी दिया, और यहाँ पे लिखा है बोथ 1 and 3 are correct, there is only option D. ओके, सो वो गलत है, आंसर इसका ऑल ही होगा, ऑल. ओके, क्वेश्चन नंबर 51. गाडगिल कमिटी, कस्तूरी रंगन कमिटी रिपोर्ट आर रिलेटेड टू Western Ghats. वेस्टर्न घाट्स. ओके, कैन एनीवन टेल मी वन और लाइक नो कोई भी एक एक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स से अटैच्ड हो, कोई भी एक आधा रिफॉर्म. जैसे फॉर एग्जांपल मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स थे, ठीक है, तो वो इससे रिलेटेड थे. ओके, एक क्वेश्चन भी आया हुआ है 2017 में था, आई गेस, बटलर कमिटी. कैन एनीवन टेल मी बटलर कमिटी किससे रिलेटेड थी? दिस इज फ्रॉम द मॉडर्न हिस्ट्री. Center and state relation. Relation with principal states. Nice, nice. All of you are having a great revision time, I guess. Okay, perfect. तो बहुत अच्छा, ठीक है. अच्छा, एक और committee from the modern history itself, and this time I guess might be you people, I guess नहीं पता होगा, ठीक है, but still you can try. Shoy committee, SHORE Shoy committee. It is related to शोर कमेटी. मुझे याद था मैम, कोई ऑप्शन मिल सकता है? एक दो ऑप्शन. ओके, ऑप्शन बाद में मिलेगा, बट अगर कोई यहाँ पे है जो बिना ऑप्शन बता सकता है, else I will give the options for sure. ओके, एक हिंट मिल सकता है. 1914 के अंदर कुछ ऐसा हुआ था जिसके लिए शॉय कमेटी बनाई गई थी. प्लीज थिंक. Kamagata Maru incident. Okay,
कामागाटा इंसिडेंट के लिए शोर कमेटी बनाई गई थी. ठीक है. ओके, नाउ लेट अस मूव टू आवर एजेंडा. Solve this question. Question number 52. Net metering. What is this? I guess answer will be A. Answer would be A. This one? Yes. Okay. Anyone? So yeah, A is correct answer. ठीक है. So see, net metering में basically क्या होता है? For example, एक इलेक्ट्रिसिटी का जो मेन एकोमोडेशन एरिया होता है वहां पे सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. ठीक है. एंड जैसे आजकल ये सोलर पावर का जो एक सिस्टम है सभी हाउसेज में रेजिडेंसेस में लगा होता है, तो व्हाट दे डू इज दे जस्ट सप्लाई देयर एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी टू द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स. ओके, सो इस वे में वो जो नेट मीटरिंग के हिसाब से कर दी जाती है, सो दैट नो you will earn for your saving the electricity and they will get it for paying you. Okay, and also it helps in like no increasing there is an increasing demand of the electricity, so just to fulfill that they buy this from the residences so that no they can fulfill the increasing demand of the residences. ठीक है. Net metering is a mechanism. Okay, ये आप अपने आप देख लेना. Okay, so which of the following best describes the aim of the Green India Mission? ये जितने भी मिशन रहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो ये एक बार सभी देख के जाना है. जैसे CPCB वाला हो गया, ओके, NGT हो गया, उसके बाद में एक वो था हमने कल भी डिस्कस किया था उसको, व्हाट वाज इट, UNCCT. ओके, UNCCT हो गया. फिर NGIBA वाला अभी जो हमने देखा है. तो ये जितने भी जल बचाओ मिशन है या नेशनल वाटर मिशन है, all of them are very much important. Okay, so coming to this question number 53. जैसे जो ग्रीन इंडिया मिशन था इसका सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, इट हैज नथिंग टू डू विद इट. ओके, ग्रीन अकाउंटिंग से भी इसका नहीं है. जिसने भी डिटेल में पढ़ा हुआ है सो दे शुड नो कि उसमें ये नहीं है. ठीक है. एंड या फॉरेस्ट कवर का तो उसमें जो पहला, अगर आप ग्रीन इंडिया मिशन करके PIB खोलेंगे तो द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट यू वुड सी देयर इज द रिस्टोरिंग एंड एनहांसिंग फॉरेस्ट कवर लिखा होगा. ठीक है. सो आंसर वुड बी ओनली लेटर C. या C वुड बी द आंसर. ठीक है, C. Okay, coming to next question. Question is about UNCCD का importance. So please try solving this question. See, साउथ एशिया नॉर्थ अफ्रीका रीजन्स पे इसका स्पेशल फोकस है एंड इट सेक्रेटरीट फैसिलिटेट्स द एलोकेशन. ठीक है, ये हो सकता है कि ऐसा कुछ होता होगा, बट द पॉइंट है इसका उसका स्पेसिफिक जो फोकस है वो यहाँ पे है. तो जिसने डिटेल में पढ़ा है उसे पता होगा ऐसा कोई स्पेशल फोकस उस एरियाज में नहीं है, वो सभी पे है. मतलब इट इज इक्वल फॉर एवरी कंट्री. ओके, इट हैज नथिंग टू डू विद स्पेसिफिक रीजन. सो लेट अस एलिमिनेट ऑप्शन नंबर 2. अब 3 में लिखा है कि बॉटम टू टॉप अप्रोच होगा इंकरेजिंग द पार्टिसिपेशन. सो सी पार्टिसिपेशन इज समथिंग वी सीक फॉर द वेलफेयर ऑफ एवरीवन. ओके, सो दिस इज समथिंग वी आर लुकिंग फॉर कि अगर बॉटम टू टॉप अप्रोच होगा तो नीचे से आपकी वॉइस ऊपर तक रेज हो पाएगी. सो उससे क्या देयर वुड बी अ perfect work culture as well. Okay, that will enhance the work culture, it will enhance the performance, it will bring the cooperation among all the stakeholders. Okay, so this is how the second statement would go wrong. The answer would be C. Please solve question number 55. Hi ma'am, do we get the PDF of this? I'll try to post it. Okay, I'll forward it. Don't worry for that. INDC. The answer will be D.
D. No, the answer will be B. B will be the answer. B for ball. B. Okay. Okay, so फर्स्ट स्टेटमेंट तो यूरोपियन कंट्रीज टू रिहैबिलिटेट रिफ्यूजीज, ठीक है, वैसे इसका आंसर बॉल ही है. ओके, एंड ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इसमें एलिमिनेशन या समथिंग ऐसा नहीं हो सकता है. इन केस यू नो तो आपके लिए इजी हो जाएगा, सो आंसर बी हो जाएगा. ठीक है, अब पॉइंट ये जो आईएनडीसीज हैं, ठीक है, आईएनडीसीज जैसे जब मॉन्ट्रियल आया था तो उन्होंने अपने भी दिए थे कि हमें ये उसमें करना होगा, वी हैव टू टेक दिस एंड दैट स्टेप. सो बेटर यू जस्ट गो इन डिटेल फॉर द आईएनडीसी, जस्ट टाइप आईएनडीसी and UPSC or Wikipedia. Better go for the Wikipedia so that you can get more details. अब यहाँ पे जो पॉइंट कंस्टिट्यूशन करने के वो सबसे पहले है AIIB. ओके, सो AIIB जैसे इन्होंने 16 में पूछा हुआ है, ये 2018 में क्वेश्चन आया था AIIB. 2018 नो 19 में, ठीक है, 2019 पे AIIB पे क्वेश्चन आया था. सो एनीवन कैन टेल मी जो AIIB है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चाइना. Where? Beijing. BEIJ. Okay, and where is the headquarter of NDB? NDB. Manila, Philippines. No, that is ADB. वो ADB का है. Okay. Shanghai? NDB का is in anyone? Shanghai. Shanghai. See how you can remember is NDB जो है वो ब्रिक्स वालों का है, right? NDB जो है ना, ठीक है, वो ब्रिक्स का है. अब याद कैसे रखना है? एनडीबी अगर ब्रिक्स का है तो जहां पे ब्रिक्स का हेडक्वार्टर होगा वहीं एनडीबी का हेडक्वार्टर होगा. ठीक है, तो दोनों का हेडक्वार्टर कहां पे है? दैट शंघाई. ओके, अब इन दोनों का शंघाई है. अब चलते हैं AIIB पे. AIIB, अब AIIB के लास्ट में क्या आ गया? बी. देन बी फॉर बीजिंग. ठीक है, अब बचा ADB. तो ADB का कहां पे है? मनीला. Am I clear to all? Victor, Portia, Dreamer, Priyanka, fine? Yes. This is how you can just remember the things. Okay, NDB और ब्रिक्स का एक जगह शंघाई, AIIB का बीजिंग में है एंड ADB का मनीला में. एंड वन मोर पॉइंट हियर, एक आया हुआ है क्वेश्चन, फोर्टालेजा डिक्लेरेशन. फोर्टालेजा डिक्लेरेशन कोई बता सकते हैं किससे रिलेटेड है? फर्स्ट ऑफ ऑल नो वन नोस फोर्टालेजा किससे रिलेटेड था? ब्रिक्स. या ओके, सो जो फोर्टालेजा है वो ब्रिक्स से रिलेटेड है और फोर्टालेजा डिक्लेरेशन के अंदर ही एनडीबी का इस्टेब्लिशमेंट की बात हुई थी और फिर ये बन गया था. ओके, सो मतलब सी द बेसिक थिंग इज कि यहाँ पे हमने सिर्फ एक पॉइंट आया था, यहाँ पे AIIB आया था. ठीक है, हमने AIIB से इतना लंबा डिस्कशन किया, ये वाला इतना पेज. कैन यू सी? So this is how you have to just know while you are reading one question. तो that doesn't mean कि आपने उसके ऑप्शन देखे, आपने सही आंसर लगाया and you moved on. No, the correct strategy is if you are reading one question, so please try to find कि यहाँ पे main suspect topic क्या हो सकता है. The first one is INDC itself. ठीक है, द सेकेंड टॉपिक है इज क्लाइमेट चेंज. कि अगर अभी भी न्यूज में कुछ ऐसा है जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, जैसे कि 2021 में एक क्वेश्चन था तालानोआ डायलॉग पे अंडर 2 कोalition. तो मतलब क्लाइमेट चेंज का अभी भी जो भी न्यूज में चल रहा है ना, व्हाइल वी आर डिस्कसिंग, वो सब आपके दिमाग में उस टाइम होना चाहिए. फिर AIIB आ गया, वो हमने डिस्कस कर लिया. और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए द मेजर हेड इज द एजेंडा 21. ओके, एंड the last question of the day is agenda 21 में 21 stands for. In agenda 21 stands for. See, this is a basic thing, no one knows. agenda 21 में 21 क्या सिग्निफाई करता है? Okay, I'm giving 2 options. The first one is 21 signifies 21 countries जहां पे ये एजेंडा इंप्लीमेंट करना.
Okay. The second one is 21 agendas are there, जहां पे ये सब इम्प्लीमेंट होगा उन 21 कंट्रीज में, वो 21 एजेंडा है. एंड द थर्ड वन इज 21 सिग्निफाइज द 21st सेंचुरी. अब बताओ कि 21 क्या हो Second सकता option. 21 agendas. है. दिस वन. Yes. Okay, anyone else? Victor, Dreamer, have 21st any guesses? 21st 21 century. सेंचुरी. ओके, और कोई? I'll also go with 21st century. Okay, see, 21st century is the correct answer. Agenda 21 के अंदर 21st century है. See, like no, if you got it wrong doesn't matter, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बट दिक्कत तब हो जाएगी जब नो जहाँ पे मेन परफॉर्मेंस है वहां सब गलत नहीं होना चाहिए. जस्ट रिमेम्बर ये फैक्ट, आई गेस, मतलब आई डोंट नो, मैंने तो बहुत पहले का पढ़ा हुआ है, बट माइट भी आपको 11th की या 12th की जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज है ना, वहां पे ये फैक्ट आपको मिल जाना चाहिए. आई रिमेम्बर सो शायद. ठीक है, देख लेना, बट अगर नहीं भी कोई बात नहीं तो मैंने बता दिया ये. ठीक है, तो ये फैक्ट एक बार ध्यान रखना. 21 का मतलब 21st सेंचुरी से, क्योंकि जब ये फाइनलाइज हुए थे ना 90s में, ठीक है, 1990s में 20, जैसे 1992 में ये आया था रियो डी जेनेरियो के जो सेशन हुए थे, तो उन टाइम में ये नेक्स्ट सेंचुरी, क्योंकि तब 21st आने ही वाला था, बस 8-9 साल ही बचे थे, तो उस टाइम में ये उस सेंचुरी के लिए कुछ एजेंडाज बनाए गए थे, सो दैट नो वहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके. और जो उनके सेशन हुए थे रियो डी जेनेरियो में, फिर रियो +10 हुआ और फिर +20 हुआ. ओके, +10 2002 में हुआ था, और +20 कहाँ हुआ था? कोई बता सकता है +20 का सेशन हुआ कहाँ पे था? रियो +20 का सेशन कहाँ हुआ था? मीन्स 2012 Rio de का Janeiro सेशन में. रियो डी जेनेरियो में हुआ. आर यू श्योर? Yes. प्लीज चेक. आई गेस ये जोहान्सबर्ग में हुआ था. एक बार प्लीज जस्ट चेक इट नाउ. एक बार प्लीज 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 चेक इट. ठीक है, ये जोहान्सबर्ग होना चाहिए इसका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एक बार प्लीज चेक कर लेना एंड डू करेक्ट. Okay, so I guess no, we are done with the bunch of questions and we'll continue tomorrow. Now let us discuss some of the doubts if you are having, and before that, let us close the session. So thanks a lot for joining the session. This was the session 5th, and almost all sessions have been uploaded on the YouTube in case you have missed any question or discussion. And also, if you are having any doubt, you can just you can text in the Accomplish Eyes channel, so that I can help you in case you are having doubts. Thanks a lot. Thank you.